Hello students, good morning. I'm your teacher Dolcy and today we are going to start next topic actually from the chapter biomolecules, and as you know we have started the type of polysaccharide, the homopolysaccharide found in our body. And in our last lecture we discussed about structural polysaccharides that are found in our body. From that I had explained you the cellulose. So what the cellulose is, it is the most abundant type of organic compound found in nature. Okay, so today I am going to start up with the second most abundant structural polysaccharide known as chitin. So chitin is the second most abundant natural polymer of glucosamine. So it is the polymer of glucosamine, means one unit is of glucose and other derivative will be of glucosamine. I will describe you with this diagram. Wait. So, what is the function of chitin? It is found in the exoskeleton of arthropods and the cell walls of fungi. आपने देखा ही होगा जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जो एंड्स होती हैं, जो कॉकरोचेस होते हैं, जो उनकी स्किन होती है वो एक स्पेसिफिक टाइप की साउंड प्रोड्यूस करती है जब वो मूव करते हैं. तो जो वो हार्ड सी वॉल होती है वाटर रेजिस्टेंट, उसे हम बोलते हैं काइटिन. किससे बनी होती है वो? काइटिन से. सेम ही जो कंपोनेंट है वो सेल वॉल बनाता है किसकी? फंजाई की. So it is a complex carbohydrate and it is of heteropolysaccharide type. Means here the units are quite different from the general units. Means actually N-acetyl glucosamine is formed. It appears like a heteropolysaccharide, but actually it is a homopolymer of the various units of N-acetyl D-glucosamine, which are bounded by beta 1 for linkages. It is very soft, it is leathery, it provides strength and elasticity both to the snakes and the fungi and to the arthropods. It becomes hard when implemented with certain means. Its hardness is based on certain proteins that are present impregnated with it. And the other one that is known for hardness is the calcium carbonate. As you all know, in our bones, in our teeth, calcium carbonate is present. So calcium carbonate is known for hardness. So if that is present, the chitin become hard. So here two diagrams are represented. First diagram, it explains the segment of cellulose chain and the other explain the small segment of chitin, that is a homopolymer of N-acetyl D-glucosamine. So in the upper chain, the polymers are beta glucose because OH is present on the upper side of the glucose moiety. And here also OH group is present upside the plane of the first carbon. As is shown here, the hydroxyl group is present above the plane. That's why this polymer is beta anomer of, this is N, this is acetyl. So this is N-acetyl, this is glucose, this is amine. N nitrogen के through, acetyl means CH3 C double bond O, ग्लूकोज अमीन मतलब ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप अटैच हो रहा है? अमीन. सो इट इज अ होमोपॉलीमर ऑफ अनएसिटाइल ग्लूकोज अमीन. दैट पॉलीमर should be in the beta anomeric form. It should not be in alpha form, it should be in beta form, because the beta form is necessary for making this specific structure. Okay, and they are bounded with one another by forming beta 1 4 linkages. Means first carbon of the glucose moiety first and the fourth carbon of glucose moiety second. Here it is first and here it is fourth. Both are attached and they share the bonding. Specifically, it is a nitrogen containing polysaccharide. As I told you, it carries the amino group here, nitrogen carrying. So it is an acetyl glucosamine polymer that is unbranched in its configuration, and both are linked by beta 1 4 linkages. Like cellulose, chitin molecules occur in bundles that are held together by hydrogen bonding. So this is all about chitin. Now we are on the third polysaccharide, that are mucopolysaccharides. So mucopolysaccharide, as its name it expresses as muco means mucus, polysaccharide means sugar,
There must be a long chain of polysaccharide within which certain other molecules are attached. So mucopolysaccharides are present in the extracellular spaces that are present outside the cell, especially in the connective tissues like cartilage, like tendons, like your skin, like the walls of blood vessels. Certain proteins are present, primarily collagen protein, elastin protein, that are present in the matrix of our body tissue, that is known as the ground substance. मीन्स म्यूकोपॉलीसेक्राइड बहुत सी जगह पे मिलते हैं, जैसे कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू में, चाहे वो कार्टिलेज हो, चाहे टेंडन हो, चाहे स्किन हो, चाहे ब्लड वेसल्स की वॉल हो, या फिर कोलेजन प्रोटीन हो या इलास्टिन प्रोटीन हो, हर जगह पे मिलता है. इट इज़ द ग्राउंड सब्सटेंस जो हमारे ज़्यादातर पॉलीसेक्राइड से बना होता है, जैसे कि ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकेंस, मतलब जिसमें ग्लूकोज की यूनिट अमाइनो मतलब पहले जैसे बताया था वैसे ही ज्वाइन होंगी, उन्हें हम क्या बोलते हैं, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स. दीज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स यूजुअली क्या होते हैं, स्लाइमी चिपचिपे होते हैं, म्यूकस विद कंसिस्टेंसी, थोड़े से जो कंसिस्टेंसी होती है, हार्डनेस होती है, वो भी इनमें प्रेजेंट होती है, लाइक डो, लाइक आर डो, इट्स क्वाइट स्लिमी एंड म्यूकस विद कंसिस्टेंसी. जो हमारा कंपाउंड है उसकी वजह से क्या बन जाता है, विस्कस मतलब थोड़ा सा गाढ़ा, और इलास्टिक मतलब थोड़ा सा स्ट्रेचेबल भी बन जाता है. दे कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय कटिंग द अनराइप फ्रूट्स ऑफ, भिंडी को जब हम काटते हैं उसे बोलते हैं ओकरा, भिंडी को क्या बोलते हैं, ओकरा. जो चिपचिपा सा सब्सटेंस बाहर आता है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो अपीयर होते हैं भिंडी में, उसे हम क्या बोलते हैं, हमारे म्यूकोपॉलीसेक्राइड. म्यूकस का मतलब ही चिपचिपा होता है. ओके ओके नेक्स्ट, म्यूकोपॉलीसेक्राइड also occur in the walls of certain bacteria, certain plant cell walls, cyanobacteria and many other aquatic plants. Means it is found on number of places. जो म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स हैं वो बने होते हैं किससे, दो यूनिट से, एक तो ग्लूकोयूरोनिक एसिड, एक एन एसिटाइल हेक्सोज अमाइन, जो यूनिट्स हैं हमारी उसकी. तो हमारी जो सिलेबस है उसमें मेनली हम क्या करेंगे, तीन जो हैं स्ट्रक्चर्स वो स्टडी करेंगे. पहला कौन सा है, हाइल्यूरोनिक एसिड, दूसरा क्या है हमारा कॉन्ड्रिन सल्फेट, और तीसरा क्या है केराटिन सल्फेट. मीन्स ये तीन म्यूकोपॉलीसेक्राइड हमारे सिलेबस में है. आपने सिर्फ नाम ही करने हैं, मैं वैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, पर आपके सिलेबस में बस इन तीनों के क्या है, नाम है. तो पहले क्या है, हाइल्यूरोनिक एसिड. हाइल्यूरोनिक एसिड एक पॉलीमर है जो एक इम्पॉर्टेंट ग्राउंड सब्सटेंस है, जो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है, साइनोवियल जॉइंट. साइनोवियल जॉइंट जैसे घुटने, वहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड. हमारे नीज में जो जॉइंट्स प्रेजेंट है उन्हें बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट. उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो वहाँ पे फ्लूइड होता है उसे बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड. हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कोड में जो फ्लूइड होता है उसे हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. एंड जो हमारी आईज में होता है, पहले होता है कॉर्निया के बाद एक्वस ह्यूमरस, और फिर आई लेंस के बाद होता है विट्रस ह्यूमरस. तो विट्रस ह्यूमरस में, साइनोवियल जॉइंट्स में और हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, हाइल्यूरोनिक एसिड. इट इज अ पॉलीसेकेराइड. इसमें कितनी यूनिट प्रेजेंट हो सकती हैं, 250 से लेके 25,000 तक. कौन सी यूनिट रिपीट होंगी, बीटा डी ग्लूकोर्निक एसिड एंड एन एसिटाइल बीटा डी ग्लूकोजामाइन. सेम जो पहले हमने कर ली. इसलिए अगर दो डिफरेंट यूनिट कंबाइन कर रही हैं तो डेफिनेटली ये क्या होगा, एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड. और ये जुड़ी किससे होती हैं, बीटा 1,3, और जब ब्रांचिंग वगैरह बना रही तो तब किससे जुड़ी होती हैं, बीटा 1,4 लिंकेजेस. सेकंड जो मॉलिक्यूल है वो हमारा कौन सा है, कॉन्ड्रिन 4 सल्फेट. कॉन्ड्रिटिन 4 सल्फेट क्या है, एक मेजर कंपोनेंट है हमारे कार्टिलेज का और कनेक्टिव टिश्यूज का. इसका स्ट्रक्चर जस्ट सिमिलर है किससे, हाइल्यूरोनिक एसिड से. बस इसमें बीटा ग्लूकोरोनिक एसिड तो सेम ही है, बीटा डी ग्लूकोरोनिक एसिड तो सेम है, बस जो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, एन एसिटाइल डी ग्लूकोज अमीन 4 फॉस्फेट. मतलब अमीन के साथ हम कौन सी यूनिट ऐड करते हैं, 4 फॉस्फेट. वही 4 फॉस्फेट हमारे स्ट्रक्चर में ऐड हो जाता है, उसका नंबर क्या बन जाता है, कॉन्ड्रिटिन 4 सल्फेट. ओके, सो फर्स्ट में क्या है, ग्लूकोर्निक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन. सेकंड में क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन 4 सल्फेट के साथ बीटा ग्लूकोर्निक एसिड. तीसरा जो मॉलिक्यूल है केराटिन. ये आपको सबको पता है, हमारे नेल्स में, हमारे हेयर में जो हूफ्स होते हैं, या फिर अदर स्ट्रक्चर जो केराटिनियस स्ट्रक्चर होते हैं बफेलो काउज में प्रेजेंट वहाँ पे देखने को मिलते हैं. इट इज फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यूज ऑल्सो, इन आर कार्टिलेज, बोन, कॉर्निया ऑफ आर आई एंड स्किन.
इट्स स्ट्रक्चर इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट ऑफ कॉन्ड्रेटिन सल्फेट। जो फोर्थ मॉलिक्यूल है हमारा वो कौन सा है, हिपैरन। हिपैरन भी क्या है, एक सल्फेटेड ग्लूकोजामीन ही एक यूनिट है, ग्लूकोज लाइक अमीनोग्लाइकैन, जिसमें हम डी ग्लूकोरनेट 2 सल्फेट प्लस डी ग्लूकोज अमीन सल्फेट दोनों को अटैच करते हैं। कौन सी पोजीशन पे, एक तो एन पे, एक कार्बन नंबर 6 पे। जो हिपैरिन है और आपने सुना होगा, इसको हम एंटीकोएगुलेंट, जो प्रॉब्लम पेशेंट्स होते हैं ना हार्ट के, जिनके ब्लड में क्लोटिंग हुई होती है, तो वहाँ पे हम एंटीकोएगुलेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। नेचुरली ये बनता है किसमें, लिवर में और मास्ट सेल्स ऑफ बॉडी में, पर हम आर्टिफिशियली भी इसे यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट द क्लोटिंग ऑफ ब्लड इन द blood vessels of the patient of heart. Okay, so these 4 compounds, first one is the chondroitin 4 sulfate, the keratin 4 sulfate, the heparin and the mucopolysaccharide में पहला कौन सा था, hyaluronic acid। ये सारे हमने क्या करने हैं, याद करनी है नाम स्पेसिफिकली, इनको याद कर लेना, अगर कोई क्वेरीज हो तो पूछ लेना। थैंक यू।